refraction on the basis of wave theory. वेव थ्योरी के बेस के ऊपर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. वी विल प्रूव स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. हल्का सा आइडिया हमने कल के लेक्चर में लिया था, कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट करते हैं. लेट अस कंसीडर xy be the interface separating the two media. This is x, this is y. This is the interface separating the two media. The speed of light in medium 1 is c and the speed of light in medium second is v. Therefore we may define mu is equal to c by v. The refractive index of the pair of media, that is given by c by v. Again let us consider a plane wavefront is incident on the interface. Plane wavefront what? AB, that is incident on the interface, or this is angle I, corresponding to this wavefront corresponding to this wavefront, let this is one of the ray. अगर ये एंगल आई है तो मेरे पास ये एंगल भी किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, आई के बराबर होगा. This is the second ray. Now अब आइजन की वेव थ्योरी क्या कहती है? आपके पास आपकी वेव फ्रंट ए से भी स्टार्ट हुई और बी से भी स्टार्ट हुई. लेट द वेव फ्रंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी रीचिंग द इंटरफेस इन टाइम टी at a dash. Let we consider the wavefront starting from point B reaches at point A dash in time t. AB be incident wavefront. Let wavefront starting from point P reaches the interface AB is incident wavefront. Let wavefront starting from point B
reaches the interface in time t. After traveling distance c multiplied by t is equal to ba dash. In the same time, position of wavefront starting from point A is given by an arc an arc of radius v multiplied by t. क्योंकि सेकंड मीडिया में वेलोसिटी किसके बराबर है, v by t के बराबर है. टेकिंग a एज सेंटर, टेकिंग a as center, now the tangent drawn from point A dash to this arc gives position of refracted wavefront A dash B dash. refracted wavefront A dash B dash. इसके ऊपर ड्रा कर देते हैं. This point is B dash and this is the corresponding ray. ये आपके पास एंगल R होगा, ये आपके पास एंगल R होगा. This is again angle I. तो ये आपके पास पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गई आफ्टर यूजिंग हाइजन्स कंस्ट्रक्शन. हाइजन की कंस्ट्रक्शन को यूज करके और क्या आ गई हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गई. ये आपके पास 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे है. नाउ वी वुड लाइक टू प्रूव स्नेल्स लॉ, जैसे कल किया था. d p d dash, let
a wavefront starting from D, any point on AB, मान लेते हैं कोई एक और वेव फ्रंट स्टार्ट हो रही है कहां से, डी से, एंड रीचेस टू डी डैश आफ्टर refraction, where D dash is on A dash B dash in time T is equal to how much? It will travel dp distance with speed c, because dp lies in the first media, और वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा किस स्पीड से, c स्पीड से, प्लस पी डी डैश डिवाइडेड बाई v. यहां से मेरे पास क्या आ गया, व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर, dp from figure, from triangle ADP, it is right angle at D, therefore this is AP sin I upon C plus PD dash, that is PA dash sin R upon V. Triangles APD and A dash PD dash, कौन से ट्राइंगल्स को यूज किया हमने, APD और ट्राइंगल A dash PD dash. Now this AP sin I upon C plus PA dash, this is PA dash, चेक करो बेटा, this is P dash, PD dash, this is right angle, right, तो ये राइट एंगल है, तो हमारे पास दिस विल बी द, दिस इज आर, और आर के अपोजिट साइड पी डी डैश है, दैट इज परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, साइन आर ही आएगा. तो ये मेरे पास हो गया, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज पी ए डैश, पी ए डैश इज ए पी ए डैश माइनस ए पी, तो ये हो गया मेरे पास ए डैश माइनस ए पी और साइन आर डिवाइडेड बाई वी. तो यहां से मेरे पास आ गया ए पी साइन आई डिवाइडेड बाई सी माइनस साइन आर डिवाइडेड बाई वी प्लस ए डैश साइन आर
डिवाइडेड बाई v। ये मेरे पास AP साइन आई बाई सी है, ये मेरे पास माइनस AP साइन आर बाई वी है। AP हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी और प्लस एक टर्म और बच गई। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज ए डैश साइन आर अपॉन वी। व्हाट वी हैव सेड, हमने कह क्या रखा है? as a dash b dash is refracted wavefront, corresponding to AB, A dash B dash is refracted wavefront corresponding to what? A B. Then time from any point यहां पर D है, then time from any point D on AB to reach the wavefront at D dash on A dash B dash must be independent of position D, i.e. P। भाई अगर हमारे पास A डैश B डैश जो है ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो डेफिनेटली कोई भी वेव फ्रंट आपकी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंची, या यहां से स्टार्ट हुई यहां तक पहुंची, या यहां से स्टार्ट हुई यहां तक पहुंची, every will take same time, that will be independent of position P, and this is true only when this is true only when टाइम आपका इंडिपेंडेंट होगा केवल तब जब ये हमारे पास टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि इस टर्म में एपी आता है। दिस टर्म डिपेंड्स अपॉन पी। अगर ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी तो आपके पास इस टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये टर्म जीरो कब होगी? दिस टर्म विल बी जीरो। कब? व्हेन साइन ऑफ आई अपॉन सी माइनस साइन ऑफ आर अपॉन वी इज इक्वल टू जीरो। Sine of I upon C minus sine of R upon V is equal to 0. This implies that sine of I upon C is equal to sine of R upon V, and this implies that sine of I upon sine of R is equal to C by V, a constant, and that is what? Mu, and this is Snell's law. तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा मैंने आज आपको ये थ्योरेटिकल इसको इलस्ट्रेट किया है, सारा बोर्ड पर लिखा है। तो कल जो हमने रिफ्लेक्शन का जो मैंने नहीं लिखा था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लगाया था, तो वो आप इस तरह से ही उसमें आप अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे क्या प्रूव हो गया? आपका स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। प्रिज्म का बिहेवियर डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म
रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डेविएट कर देता है। प्रिज्म क्या करता है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डेविएट करता है। तो हम चेक करते हैं कि हाइजन की थ्योरी के अनुसार हम किस तरह से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिहेवियर of a prism towards a plane wavefront. Behavior of a prism towards a plane wavefront. We have to explain this. After passing through the prism, the emergent ray is like this. ये क्या है आपके पास, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपके पास, इमर्जेंट रे. Let me discuss this thing. I am supposing that I have a prism and the prism is P Q R. प्रिज्म का नाम दे दिया हमने पी क्यू आर. मैं जानबूझ करके रे पहले डाल रहा हूं. These are the rays corresponding to वेव फ्रंट क्यू के. क्यू के जो है वो आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है. अब क्या हुआ हमारे पास, एक वेव फ्रंट क्यू से स्टार्ट हुई. एक वेव फ्रंट कहां से स्टार्ट हुई, एक वेव फ्रंट स्टार्ट हुई कहां से, के से. क्यू वाली वेव फ्रंट जब आर पर पहुंची, क्यू वाली वेव फ्रंट जब कहां पर पहुंची, आर पर पहुंची, तो के वाली वेव फ्रंट कहां पर पहुंची होगी. विल इट ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू क्यू आर और इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस. थिंक. आपके पास एक वेव फ्रंट स्टार्ट हुई क्यू से, अलोंग द प्रिज्म, विद इन द प्रिज्म ट्रेवल हुई और कहां पर पहुंची, आर पे पहुंची. इतने टाइम में आपकी एक वेव फ्रंट स्टार्ट हुई कहां से, के से. हाउ मच डिस्टेंस दैट विल ट्रेवल, इक्वल टू क्यू आर और मोर देन क्यू आर, मोर देन क्यू आर, क्योंकि क्यू आर सारा का सारा डिस्टेंस मीडिया में ट्रेवल हो रहा है. एंड द स्पीड इज लेसर इन मीडिया. स्पीड क्या है आपकी, लेसर है. किसमें है, मीडिया में लेसर है. तो यहां पर मेरे पास वेव पहुंची, तो इससे बड़ा रेडियस लेकर के मैं अगर एक सर्कल डालूं, इससे बड़ा रेडियस लेकर के मैं क्या डालूं, एक सर्कल डालूं, तो उसके ऊपर बाद में मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा, क्या ड्रा करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा. और भी बड़ा सर्कल हो सकता है ये, और भी बड़ा सर्कल हो सकता है. और फिर मैं जब इसके ऊपर यूं टेंजेंट डालूंगा और पी पॉइंट से ये रे तो यहां से पी पॉइंट से आएगी, तो इस तरह से आपके पास इमर्जेंट रे बन जाएगी, वेव फ्रंट बन जाएगी. तो ये हमारे पास आर के डैश इज इमर्जेंट वेव फ्रंट.
आर के डैश क्या है? आपकी इमर्जेंट वेव फ्रंट है। मोटी सी बात है। आपके पास एक स्टिक ट्रेवल कर रही है, आपके पास एक स्टिक ट्रेवल कर रही है। अगर इस कॉर्नर की स्पीड v1, इस कॉर्नर की स्पीड v2, अगर v1 ग्रेटर देन किसके है? v2 के है, तो डेफिनेटली दिस स्टिक विल बेंड लाइक दिस। बताओ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? तो यही हाल इस वेव फ्रंट का हुआ, यही हाल इस वेव फ्रंट का हुआ। इस कॉर्नर की स्पीड ज्यादा है और इस कॉर्नर की स्पीड कम है, तो इसलिए वो क्या कर गई? बेंड कर गई। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्लेन दिस। क्या मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है हमें? बेंड तब कर गई जब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा है, तभी तो बेंडिंग डिफाइन हुई। अगर ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता तो बेंडिंग डिफाइन नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि आपकी वेव फ्रंट जितने टाइम में क्यू से आर पहुंची, उतने टाइम में कहां से कहां पहुंची? के से के डैश। और हमें यह प्रूव करना है के से लेकर के के डैश तक का डिस्टेंस क्यू से लेकर के आर तक के डिस्टेंस से ज्यादा है। कैन वी प्रूव इट? यस वी कैन प्रूव दिस। कैसे? एज आर के डैश इज इमर्जेंट रे corresponding to R K dash is emergent ray corresponding to what? है बेटा? R K dash वेव फ्रंट है, R K dash ये इमर्जेंट है। क्या कहना चाह रहे? हाँ, आर के डैश इमरजेंट ही है। रे लिख दिया, रे लिख दिया। दिस इज नॉट रे, दिस इज वेव फ्रंट। आर के डैश इज इमरजेंट वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू के। तो क्या होगा? डेफिनेटली क्यू आर डिवाइडेड बाई सी, क्यू आर डिवाइडेड बाई वी, क्यू आर डिवाइडेड बाई दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम क्यू टू आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई वी मस्ट बी इक्वल टू के पी प्लस पी के डैश डिवाइडेड बाई सी। तो यहां से मेरे पास हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाई के पी प्लस पी के डैश इज इक्वल टू वी बाई सी एंड दैट इज लेसर देन 1। या यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या? क्यू आर इज लेसर देन के पी प्लस पी के डैश। क्यू आर जो है आपका लेसर है, किससे लेसर है? के पी प्लस पी के डैश से। तो इस तरह से आपके पास रे ऑफ लाइट क्या कर गई? आपकी बेंड कर गई, या वेव फ्रंट आपकी क्या कर गई? अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। behavior of a convex lens towards
a plane wavefront. प्लेन वेवफ्रंट बोले तो पैरेलल रेज, प्लेन वेवफ्रंट बोले तो क्या है आपका पैरेलल रेज। ये मेरे पास लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं एंड दे विल बी कन्वर्स्ड। ये आपका रे ऑप्टिक्स कहता है ऐसे। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। इसी चीज को हम किससे प्रूव करेंगे? वेव थ्योरी से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करें? लेट दिस इज द लेंस, एक्स वाई, लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। या कोई रे है विच इज फॉलोइंग, this is another ray, this is another ray, and this is the wavefront. ये wavefront है मेरे पास A, let this is P1 and this is B. A, P1, B, this is the wavefront. और इस wavefront को हमें कैसा प्रूव करना है? इस wavefront को हमें इमरजेंस के बाद में ऐसा प्रूव करना है। कन्वर्जिंग, दिस इज व्हाट? दिस इज कन्वर्जिंग, ऐसे प्रूव करना है। What is the meaning? We have to prove that ये हमारे पास यहां से स्टार्ट हुई वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट यहां से स्टार्ट हुई। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस कौन सा वाला? ए एक्स ए डैश, ए एक्स ए डैश प्लस एक्स ए डैश, ये डिस्टेंस ग्रेटर है किससे? P1 और ये कोई पॉइंट है उससे। अगर ये डिस्टेंस बराबर होता, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता तो ये प्लेन ही रहती, बट डिस्टेंस बराबर नहीं है। लेट दिस इज P1 एंड दिस इज P2। P1 P2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया? P1 P2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया? उतने ही टाइम में ए से स्टार्ट होने वाली वेव फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ज्यादा करेगी कम करेगी? एक ए से चल रही है, एक P1 से चल रही है। P1 से जो वेव फ्रंट चल रही है वो सारी की सारी मटेरियल ऑफ द लेंस के अंदर से चल रही है, और मटेरियल ऑफ द लेंस के अंदर से चल रही है तो डेफिनेटली दैट विल हैव लेसर स्पीड। और भाई आपकी जो ए से चल रही है वो किस में चल रही है? एयर में चल रही है। तो मैं इसका तो स्फीयर आपका ये हो गया, अगर मैं इसका स्फीयर ड्रा करके चलूं तो बड़ा ड्रा होगा, और इसका स्फीयर भी ड्रा करके चलूं तो इसके बराबर ही होगा ऐसे। अब मुझे ये पॉइंट भी कवर करना है, इसका पॉइंट भी कवर करना है, इसका पॉइंट भी कवर करना है, तो ये हमारे पास इसका टेंजेंशियल सरफेस आ गया। दिस इज अ टेंजेंशियल सरफेस, this is point B dash, this is P2, this is what? A dash.
तो ये आपकी रे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। हाउ वी कैन प्रूव दिस, दोबारा से P1 P2 divided by V must be equal to AX plus XA dash divided by C plus is equal to BY plus YB dash divided by C. BY plus YB dash, this is in here. P1 P2 सारा लेंस में से, AX plus XA dash सारा किसमें से, एयर में से। तो यहां से दोबारा से मैं लिख सकता हूं AX plus XA dash is equal to BY plus YB dash greater than P1 plus P1 P2, not P1 plus P2. ये आपके पास बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस हो गया। इसी तरह से आप बिहेवियर ऑफ कॉनकेव भी कर सकते हो। हल्का सा बता दूं मैं, बिहेवियर ऑफ कॉनकेव कैसे करोगे। ये कॉनकेव बना मेरा, एक रे आपकी यहां आई, एक रे आपकी यहां आई, ये आपकी वेव फ्रंट। ए से ए डैश पर पहुंची, बी से बी डैश पर पहुंची, यहां सी से कहां पहुंचेगी, सी डैश पर पहुंचेगी। पर सी सी डैश डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन ए ए डैश। समझ में आता है कि नहीं आता है। सी सी डैश, ये वेव फ्रंट का लेटर पॉइंट है, सी डैश विल बी ग्रेटर देन ए ए डैश। कितने लोगों को समझ में आता है। क्यों, क्योंकि सी से ट्रेवल करने वाली वेव फ्रंट मोस्टली पार्ट एयर में से ट्रेवल करती है, और ए से ट्रेवल करने वाली वेव फ्रंट आपका सारे का सारा पार्ट किस में से ट्रेवल कर रही है, मटेरियल ऑफ लेंस में से। तो मोटी सी बात है कि भाई ए ए डैश से ज्यादा आपका सी सी डैश होगा, तो अब की बार वेव फ्रंट ऐसे हो जाएगी हमारी। और अगर ऐसे हो गई तो ये रे तो मेरी सीधी निकल गई, और यहां पर नॉर्मल इधर, यहां पर नॉर्मल इधर, तो कौन सा बिहेवियर हो गया, ये डाइवर्जिंग बिहेवियर होगा। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एक और करते हैं, बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर, बिहेवियर ऑफ ए कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। बिहेवियर ऑफ ए कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स ए प्लेन वेव फ्रंट। अब की बार स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मिरर करेगा रिफ्लेक्ट, एंड द वेव फ्रंट विल रिमेन इन सेम मीडियम। और वेव फ्रंट अगर आपकी सेम मीडियम में है तो आपका स्पीड चेंज नहीं होगी। तो फिर किस तरह से चेंज आएगा, लेट वी सी।
Let this is the concave mirror X, Y having pole P. These are the rays, and I am assuming that this is the incident wavefront, and naming it A, B, C. Where it will focus? At the focus, मोटी सी बात. After reflection, where the rays will meet? फोकस के ऊपर मीट कर. यानी जो वेव फ्रंट आएगी हमारी, स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगी, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर होना चाहिए. किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये जो हमारी रे बन करके वेव फ्रंट बन करके आएगी, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होना चाहिए? आपका फोकस पर होना चाहिए. ये प्रूव करना है. यानी वी हैव टू प्रूव दैट मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और वेव फ्रंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट आना चाहिए. ये बात आती है समझ में? मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 2f के ऊपर होगा. मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, वो तो कहां पर आएगा? 2f पर आना चाहिए. और जो हमारी वेव फ्रंट आएगी, वो तो कन्वर्ज होनी चाहिए किसके ऊपर? फोकस के ऊपर. तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहां पर आना चाहिए? फोकस पर. यानी मोटी सी बात है कि आपका वेव फ्रंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होना चाहिए. ठीक है, तो प्रूव करना चाहते हैं हम इस चीज को. एक वेव ए से चली, एक्स पर पहुंची, लौटना स्टार्ट की. एक वेव बी से चली, वाई पर पहुंची, लौटना स्टार्ट की, रिफ्लेक्ट होकर के. एक वेव सी से स्टार्ट हुई, कहां पर पहुंची? पी पर पहुंची, और फिर कैसे क्या करना स्टार्ट की? लौटना स्टार्ट की. तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द सेम टाइम मान करके चल रहा हूं. ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ए डैश है. बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? बी डैश है. और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सी डैश है. तो ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, आप बताओ मेरे को. ए एक्स प्लस एक्स ए डैश मस्ट बी इक्वल टू बी वाई प्लस वाई बी डैश मस्ट बी इक्वल टू पी सी पी प्लस पी सी डैश. ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो ए से लेकर के ए डैश तक पहुंचने का टाइम, बी से लेकर के बी डैश तक पहुंचने का टाइम, और सी से लेकर के टाइम बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर टाइम बराबर है, या तो स्पीड भी बराबर है, क्योंकि आपका वेव फ्रंट ने मीडिया चेंज नहीं किया है, तो ये डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए. ठीक है, और यहां से मेरे को क्लियर नजर आ रहा है. क्या क्लियर नजर आ रहा है? एक्स ए डैश इक्वल टू वाई बी डैश ग्रेटर देन पी सी डैश. बताओ. एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई बी डैश इज ग्रेटर देन पी सी डैश. कितने लोगों को समझ में आता है? as ax is equal to by is lesser than cp. भाई मोटी सी बात है, अगर ax cp से लेसर है, मैं नहीं कह रहा, ये फिगर कह रहा है.
ये ए एक्स है, ये सी पी है। आपका ए एक्स लेसर देन किसके है? सी पी के है। तो मोटी सी बात है, एक्स ए डैश ग्रेटर देन किसके होगा? पीसी के होगा। तो यहां पर मेरे पास, यहां से अगर मैं वेव फ्रंट्स ड्रा करूं पी से, तो नहीं सॉरी एक्स से, तो ये तो मेरे पास एक्स ए डैश के लिए सर्कल, ये मेरे पास वाई बी डैश के लिए सर्कल, और ये मेरे पास पी सी डैश के लिए सर्कल। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पी सी डैश के लिए सर्कल छोटा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि पी सी डैश आपका एक्स ए डैश से छोटा है। अब इनको टच करते हुए टेंजेंशियल सरफेस डालें, तो इनको टच करते हुए टेंजेंशियल सरफेस डालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का सरफेस आ जाएगा। इस तरह का आपका सरफेस आ जाएगा। तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, और ये आपका सी डैश हो गया। क्लियर कट नजर आ रहा है? इसका सर्कल अगर मैं पूरा करूं, और इसका सर्कल पूरा करूं, तो आपका डेफिनेटली वेव फ्रंट का आपका सेंटर जो है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी पहले आएगा। और ज्योमेट्रिकली इट कैन बी प्रूव्ड दैट अगर अपर्चर स्मॉल हो तो दैट विल बी एफ इज इक्वल टू व्हाट? R/2। ठीक है बेटा।